Greetings, everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles are discussing today. So the first article is on the aspects of India and China boundary dispute. So यहाँ पर बात करेंगे इंडिया और चाइना के boundary disputes के बारे में, उनके historical conditions को समझेंगे, उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को समझेंगे एज वेल एज करंट सिनेरियो में क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं जो कि इस बाउंड्री डिस्प्यूट्स के बीच में ओवरसी किए जा रहे हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स है जो कि इन टेंशंस को डिस्टर्ब करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं. दैट आल्सो विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is on the aspects of CPCB, that is the Central Pollution Control Board. So यहाँ पर बात करेंगे CPCB के बारे में, उसके nuances को समझेंगे, उसके provisions को समझेंगे, उसके acts, उसके mandates और functions को समझेंगे in our second article. And as usual, the third one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of India and China boundary dispute. Now this article is based off an comment जो कि चाइना की तरफ से आ रहा है, जहां पर they are clearly stating कि वो ready हैं that they would be working with India for steady growth of ties. नाउ ये कमेंट पहले भी आ चुके हैं, काफी बार आते रहते हैं जब भी कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी स्टैंड ऑफ होता है बिटवीन द मिलिट्रीज और बिटवीन एनी अदर सेक्शंस ऑफ इंडिया एंड चाइना. Always the MEA of India or China gives such positive or affirmative responses. Now, irrespective of these responses or the nature of the responses, there is an underlying issue जो कि इन disputes को cause करता है. एंड दैट अंडरलाइंग इशू इज समथिंग जो कि हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना है और यूपीएससी के लिए समझना है. एंड दैट अंडरलाइंग इशू इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट. अब क्योंकि इंडिया एंड चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो काफी कंटेंशियस इश्यूज है, काफी बार हम डिस्प्यूट्स देख चुके हैं, काफी बार हम लोग स्टैंड ऑफ देख चुके हैं. And there is an underlying issue जो कि मैंने पहले भी कहा, and that underlying issue we have already analyzed in great details in our 13 December video, जहां पर we started off with the source of the tension. क्या है टेंशन का सोर्स, क्यों डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, क्या क्लैरिटी की कमी है, कैसे हम लोग क्लैरिटी ला सकते हैं, और इन दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना के बीच में कौन से एग्रीमेंट्स हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, एग्रीमेंट्स के क्या क्या नुआंसेस हैं. All these things I have already discussed in our 13 December video. But at the same time, since this India and China boundary dispute is the world's longest boundary dispute जो कि ongoing है, that is why I have also mapped our India and China's boundary dispute, जहां पर इनके historical quotations को लेके, इनके future prospects and current scenario को I have in detail explained all the specific points of that. So please refer to the 13 December video so that you have a very good clarity of this topic. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of CPCB. Now, what is the CPCB? CPCB is an abbreviation of Central Pollution Control Board. Now, CPCB ने अपने रिपोर्ट में जो कि उन्होंने नवंबर में रिलीज किया, अपने रिपोर्ट में they have stated that fewer polluted river stretches have shown improvements. At the same time, जो worst one थे उनमें से worst one has still remained unchanged. So that is an peculiar statement. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि पर्टिकुलरली किसी एक स्ट्रीम जो कि ज्यादा पोल्यूटेड थे उस स्ट्रीम के ऊपर डायरेक्टेड थे, उनमें हम इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं. बट वैसे स्ट्रीम्स जो कि माइल्डली पोल्यूटेड थे और जहां पर स्पेसिफिक स्कीम्स हमने डिजाइन नहीं किए हैं या जहां पर ज्यादा फोकस नहीं रहा है, दैट हैज शोन एन कंसिडरेबल इंक्रीज. सो दिस इज एन वेरी पेक्यूलर स्टेटमेंट कमिंग आउट ऑफ सीपीसीबी. But irrespective of the confrontation, irrespective of the debate which should be evolving from the statement, what we need to be focused is on the aspect of CPCB. CPCB क्या है, that is very important from UPSC's perspective. So अब समझते हैं कि इसके basic nuances क्या क्या हैं. So, what is CPCB? CPCB, as it is quite evident from the name itself, ये एक बोर्ड है जो कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए है एंड दैट वर्क्स एट दी सेंट्रल लेवल. सो ये सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है और यहाँ पर पर्टिकुलर बेसिक एस्पेक्ट इज कंट्रोलिंग द पोल्यूशन. नाउ देयर आर क्वाइट nuances जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स लुक ऑन दोस पॉइंट्स. The first point that you need to understand and that you need to remember is that CPCB is an statutory organization. So what do you mean by statutory organization? So statutory organizations वैसे organizations होते हैं जिसकी जो formation है that is based on the act of the parliament. अगर किसी भी organization, किसी भी office का formation is because of the act जो कि parliament ने पास किया है, that organization or that office is known as statutory organization, and this organization operates under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
प्लीज रिमेंबर देयर इज अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन वैसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऑफिस होते हैं जो कि जिनका फॉर्मेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान में किसी ऑफिस का फॉर्मेशन लिखा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस लिखा हुआ है, और उसके बेसिस पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस को बनाते हो, उसको मैंडेट देते हो, देन सच एन ऑफिस और एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट मीन्स कि सीपीसीबी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, देर इज नो मेंशन ऑफ सीपीसीबी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज बी क्लियर ऑन दैट पॉइंट। Another point, as I told, कि ये statutory organization, that means इसका जो formation है that is based on the Act of Parliament. Now, which is that act? That act has been the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. So this is the parent act जिसके basis पर CPCB का formation हुआ था. But later stages में इनको functions और responsibilities भी दे दिए गए थे जो कि Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 के अंदर है. So as of now वो वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 दोनों के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं दोनों का काम करता है। सो इट हैज ब्रॉडन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट हैज ब्रॉडन द मैंडेट एंड द फंक्शंस ऑफ द ईयर्स। अब क्योंकि यहाँ पर जो मैंडेट है दैट इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड, इसीलिए इनको काफी सारे सब ऑफिसर्स, सब्सिट्यूटिव ऑफिसर्स की जरूरत है जो कि इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मोर डाइवर्सिफाइड है। एंड दैट इज वाई इवन दो सीपीसीबी सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट लेवल पे भी ऑफिसर्स की जरूरत है, एंड दैट इज वेयर द एसपीसीबी कम्स इन। सो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आते हैं जो कि स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, स्पेसिफिक स्टेट्स में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में वो देखते हैं, और इनमें अगर कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होती है या गाइडेंस की, या कोई स्पेसिफिक ए और बी स्टेट के जो एसपीसीबीज है उनमें बीच में कोई डिस्प्यूट होते हैं, टेक्निकल डिस्पैरिटीज होते हैं, सो इन ऑल सच केसेस दिस सीपीसीबी इज वेयर दे लुक ओवर इनटू। सो सीपीसीबी के पास वो जाते हैं ताकि वो उनको टेक्निकल गाइडेंस मिले, टेक्निकल असिस्टेंस मिले, या अगर उनको डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना है सो दे लुक ओवर टू दी सीपीसीबी। सो सीपीसीबी इज द पेरेंट बॉडी, इट्स काइंड ऑफ एन अपर हैंड जो कि कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को। Now this is just an broad overview of the functions जो कि CPCB करता है। Now there are specific functions जो कि CPCB कहीं ना कहीं मेटलाइज करता है, कहीं ना कहीं ओवरसी करता है, and that is also very important. The first point that you need to understand under the functions is that it advises the central and the state government on matters relating to prevention, improvement and control of air and water pollution. नाउ प्लीज रिमेंबर काफी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इवन दो नाम में सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल है, दैट डजंट मीन कि उनके स्कीम्स में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के एस्पेक्ट्स हो। वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी स्कीम्स निकाल सकते हैं, एडवाइसेस निकाल सकते हैं, या प्रिवेंशन के लिए भी उनको टेक्निकल गाइडेंस वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो प्लीज बी क्लियर ऑन दैट, इवन दो नाम में कंट्रोल है दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स या मिटिगेटिव मेजर्स भी वो प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हेल्प इन प्लान वेरियस प्रोग्राम्स ताकि हम कंट्रोल कर पाए और प्रिवेंट कर पाए एयर एंड वाटर पोल्यूशन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए यू नीड टू हैव मैन पावर जिसके पास अवेयरनेस होने की जरूरत है, एंड द कॉमन सिटीजन शुड बी एट द सेंटर ऑफ दिस चेंज एंड द अवेयरनेस, और इसीलिए दे डू ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि लोग के बीच में जो अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंशन, इंप्रूवमेंट या कंट्रोल, वो अवेयरनेस बढ़े। At the same time, because this can be an qualitative and quantitative aspect, this pollution, that is why इसको quantitatively और qualitatively measure करने के लिए they collect, compile and publish statistical and technical reports, ताकि एक clear, एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर हमारे सामने हो कि कितने इफेक्टिव मेजर्स हैं। जैसे कि आज का आर्टिकल है, आज के आर्टिकल में आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज हैं, कहीं ना कहीं लेकुनेज हैं। So this is because of the reports that they have compiled. This is because of the statistical analysis that they have compiled, and this is one of the functions of the SPCB. At the same time, they do prepare manuals, codes या guidelines. So कैसे करना है ट्रीटमेंट, कितने किसी इंडस्ट्री से एफ्लुएंस अगर आप डिस्चार्ज करते हो तो किस स्टैंडर्ड के एफ्लुएंस होने चाहिए, उसमें कितने पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होने चाहिए, कितने पोल्यूटेड होने चाहिए, आपकी कोई स्ट्रीम है तो स्ट्रीम में कितना वाटर होना चाहिए मिनिमम, कितना फ्लो होना चाहिए। सो ऑल दिस नुएंसेस, ऑल दिस टेक्निकल डाटाज आर बीइंग कोडेड बाय द सीपीसीबी इटसेल्फ, ताकि एक एयर एंड वाटर प्रिवेंशन के एस्पेक्ट में एक कंटिन्यूम बरकरार रहे, एक मेजर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम लोग थ्रो कर पाए। विद दैट,
Now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the aspects of GCC, that is the Gulf Cooperation Control. So please answer this question. It's a quite straightforward question, where the second question is regarding the Article 75 or Council of Ministers. Now again, both these questions are based on current affairs, so both questions को answer करें, और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF. You would get a link in the video's description also. So with that, stay tuned for more content, study hard, work hard, at the same time stay safe. The COVID is again coming back, so please stay safe. With that, see you tomorrow.